Hello dear students, welcome again. Here we will going to start a new chapter of geography, resource and development, which is a part of social sciences. Here we will see first topic, what is resource. We know about resources very deeply, and then we will going to classification of resources on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, ownership, and the status of development of resources. On the four basis we will going to classification of resources, and in the next topic we will discuss about the development of resources, and then resource planning in our country and world level, and then land resources in India. And next topic we will discuss about land degradation and conservation measures, and after that soil as a resource, how soil it is a resources, and then conservation of soil, how we conserve soil, and the what types of soil, classification of soil on alluvial soil, what is alluvial soil, what is black soil, what is red and yellow soil, laterite soil, arid soil, forest soil, and what is the characteristics of these types of soils. And then we will last this chapter of our last topic, soil erosion and conservation. So we're going to start this chapter first by the resource. What is resources? First we going to study what is resource. Try to learn about resources. If you remember, we already learned about resources in the previous class 9th geography, where we studied that anything that satisfy our need is called resources. Let's start. Here we first try to understand what is resources. If you remember that we already learned about resource in class 9th, where we use the term as a resource. Definition, its simple definition was anything that's that fulfill our needs is called resource. Like this, it is resources. Its board is whiteboard is resources, camera is resources. Anything that occupy our needs, fulfill our needs is called resources. But here we define it, everything available in our environment, available in environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Acceptable can be termed as resource. Here we see that it is a
large definition of resources. Compare then class 9th resource definition, where we see the anything that fulfill our needs is called resources. Very simple. But why here this large definition is termed as resources? Okay, we define it. Why? Look here, everything available in environment. Resources जो environment में available हो, which can be used to satisfy our needs. इतना तक definition हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ और जोड़ा गया है, जैसे प्रोवाइडेड रिसोर्सेज जो उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तकनीक के आधार पर क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. इकोनॉमिकली फिजिबल, ऐसा रिसोर्स जो इकोनॉमिकली बेस पर क्या हो, वो उपयोग करने के लायक हो. अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बेशकीमती चीज़ उसको हम रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं. इकोनॉमिकली फिजिबल हो, आर्थिक रूप से, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कल्चर में, हमारे कल्चर में क्या हो, सभी लोगों के द्वारा वो स्वीकार्य हो. ऐसा रिसोर्स को हम लोग, इस डिफिनेशन को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ टर्म्ड एज रिसोर्सेज. अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड, उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल हो. अब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा रिसोर्सेज हो सकता है कि अदर प्लानट पे है, तो उस रिसोर्सेज के कारण क्या करेंगे हम कि बहुत सारा इकोनॉमिक खर्च करके कोशिश करेंगे कि इस प्लानट से लाने का, उस प्लानट से लाने का, जो कि इम्पॉसिबल है. इकोनॉमिकली फिजिबल वो नहीं भी है. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में क्या हो कि वो स्वीकार्य हो सभी लोगों के द्वारा. इस टर्म को हम क्या कहेंगे, इसको रिसोर्स कहेंगे, संसाधन कहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो. आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं वो बुक्स भी क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि वो आपका नीड्स को क्या कर रहा है, फुलफ़िल कर रहा है. इकोनॉमिकली ये पॉसिबल है, फिजिबल है, प्रोवाइडेड है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है आपका बुक. इस तरह से हम क्या देखेंगे, इट इज़ अ डिफिनेशन ऑफ रिसोर्स. नाउ नेक्स्ट वी गोइंग टू interconnected the resource on the physical environment, that means nature, then technology and institutions. इस इंटरकनेक्टेड के बीच में क्या है कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी मानव, हम जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो रिसोर्स के लिए किस पे डिपेंड है, फिजिकल इन्वायरमेंट पे, दैट मीन्स नेचर पे क्या है, हम लोग डिपेंड हैं. और नेचर पे डिपेंड है, और किसके द्वारा डिपेंड है, टेक्नोलॉजी के द्वारा. टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, नेचर से रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यदि टेक्नोलॉजी नहीं रहता तो हम लोग क्या कर सकते थे, धरती के अंदर से क्या पेट्रोलियम हम लोग नहीं निकाल सकते, कोयला नहीं निकाल सकते, यदि टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं रहता. और उसका यूज करते हैं हम इंस्टीट्यूशन में. ठीक है, ये क्या है, इंटरकनेक्शन है ह्यूमन बींग्स का फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ. अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, इज रिसोर्सेज गिफ्ट ऑफ नेचर, क्या रिसोर्स जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है. और यही बात को सोच करके, ये गलत धारणा को हम लोग दिमाग में रख करके क्या करते हैं कि रिसोर्सेज का बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज करते हैं, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्टेड है, नेचर गिफ्टेड है. बट हियर द क्वेश्चन इज, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स. रिसोर्सेज आर ए फंक्शन of human beings, not gift of God. Human beings themselves are essential component of resources. Resources का एक मेन components हम human beings हैं. क्यों? क्योंकि इस resources का यूटिलाइज कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं. तो एक तरह से क्या है कि हम भी क्या
एक रिसोर्स ही है। ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स आल्सो आ रिसोर्स, बिकॉज नेचुरल मटेरियल को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, अपना इन्वायरमेंट से उसको अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके यूटिलाइज करते हैं और क्या करते हैं, उसको यूजेबल बनाते हैं उस रिसोर्स को। सो वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर आल्सो अ रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट वी सी अबाउट, know that there are two types of resource, natural resource and second man-made resource. We classify resource as a natural resource and man-made resource or human beings. We see that natural resource or human resource. Now we next this topic, that resources, there are two types of resources, natural and human. Natural resources and human resources. Human resources comprises two, that structure of institutions, okay, and second quality and quantity. That means human resource classifying two types, structure of institution, that means the institution which can the utilize resources, okay, and second what is the type of resource, what is the quality of resource where we use this resources, and how much quantity of resource, okay. ह्यूमन रिसोर्स में क्या है कि जो इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि जो भी इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, उस रिसोर्स को निकाल रहा है, क्या वो उसका जो लिमिटेशन है, उसका जो क्षमता है, क्या वो रिसोर्स को निकाल के यूटिलाइज करने का है, तो ये इंस्टीट्यूशन कौन चला रहा है, ह्यूमन रिसोर्स चला रहा है, के अंतर्गत आता है। और क्या है कि जो रिसोर्स है उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक है, वो क्वालिटी क्या है, लोअर है, हायर है, किस कहाँ पे हम उसको रिसोर्स का यूज कर सकते हैं, क्वालिटी, और कितना मात्रा में वो रिसोर्स अवेलेबल है हमारे नेचर में, और क्वांटिटी कौन फाइंड करेगा, ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में ये आता है। अब हम देखेंगे क्या, नेचुरल रिसोर्स में दो टाइप्स का रिसोर्स है, इसमें क्लासीफाई कर रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स में रिन्यूएबल, जिसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, एक बार एग्जॉस्टेबल होने के बाद, एक बार ख़त्म होने के बाद। और दूसरा क्या है कि नॉन रिन्यूएबल, जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है लेकिन उसके लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है रिसोर्स को दोबारा बनने में। तो नेचुरल रिसोर्स को हम दो टाइप में बांट रहे हैं, रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स वर्ड से ही डिफाइन है, क्या जिसको क्या कर सकते हैं हम दोबारा पुनर्निर्माण कर सकते हैं, अगेन क्या कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा क्या होगा, वो क्रिएट हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल क्या है कि ये ह्यूमन बींग्स का जो टाइम स्पेंड है उससे पहले ये नहीं होता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको दोबारा एक बार ख़त्म यदि एग्जॉस्ट हो जाएगा, दोबारा ये क्या है कि नहीं फिर रिन्यू होगा, ओके। रिन्यूएबल रिसोर्स में भी हम क्या देखते हैं कि इसको बांटा गया है क्या, कंटिन्यूस और फ्लो। और फ्लो पर, जैसे कंटिन्यूस, रिन्यूएबल में कंटिन्यूस कौन सा है, विंड रिसोर्स हो गया,
वाटर रिसोर्स हो गया, विंड रिसोर्स का यूज करके हम लोग विंड वैन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वाटर का रिसोर्स का यूज करके वाटर ड्रिंक के लिए भी, और वाटर का कई सारा यूज है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं हम लोग वाटर से। तो ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, दैट मीन्स ये लगातार क्या है कि अवेलेबल होता है। वाटर क्या है कि वो साइकिलिंग के द्वारा, वाटर साइकिल के द्वारा अवेलेबल होता है ठीक, फ्रेश वाटर। और इसमें क्या देखेंगे हम लोग, रिन्यूएबल के बाद कंटिन्यूस हुआ, और दूसरा देखेंगे रिन्यूएबल में ही बायोलॉजिकल। सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। और बायोलॉजिकल में दो तरह का देखेंगे रिसोर्स, एक है नेचुरल वेजिटेशन, और इसी में क्या देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन जिसमें कि पेड़ पौधा जो भी वनस्पतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे क्या, कि जंगली जीवन जो है वो किस तरह से हमारे लिए रिसोर्स का काम करता है। ये किस में देखें हम लोग, ये रिन्यूएबल रिसोर्स में देखें। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या देखेंगे, ये दो तरह का होता है। एक होता है क्या, रिसाइक्लेबल, जिसका रिसाइकल किया जा सके आसानी से, जैसे मेटल से ये सब को क्या कर सकते हैं, हम रिसाइकल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, नॉन रिसाइक्लेबल लाइक फॉसिल फ्यूल, जो भी फॉसिल फ्यूल है वो क्या है, नॉन रिसाइक्लेबल के अंडर में आएगा। क्यों, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को दोबारा जनरेट होने में हम जानते हैं क्या है कि हज़ारों साल का समय लगता है, जो कि हम मानव के जीवन के अवधि से क्या है कि बहुत ही ज़्यादा है। फॉसिल फ्यूल जनरेट होने में क्या, इनसाइड द अर्थ होता है फॉसिल फ्यूल जनरेट, और टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा क्या है कि बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है फॉसिल फ्यूल बनने में। तो अब हम क्या देखेंगे कि रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे और समझेंगे विद द एग्जाम्पल। अब क्या देखेंगे हम लोग, जो पढ़े थे इससे पहले स्टार्टिंग में हम जो देखे थे क्या, कि रिसोर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस पे। तो किस किस बेसिस पे, रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वेज, जिसमें कि हम देखे क्या थे, सबसे पहले बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें जानेंगे क्या हम लोग यहाँ पर, ओरिजिन के बेस पे बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे क्या, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे कि कितने समय तक वो चलता है, वो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे क्या, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। थर्ड में क्या है,
ऑनरशिप के बेसिस पर किसका अधिकार है उस रिसोर्स पर, ऑनरशिप के बेसिस पे देखेंगे हम क्या, इंडिविजुअल, जिस रिसोर्स पर किसी इंडिविजुअल पर्सन का क्या हो, ऑनरशिप हो, तो इंडिविजुअल रिसोर्स है। एक है कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी, और एक क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो बेसिस ऑनरशिप के आधार पे क्या देखें हम लोग, क्या इंटरनेशनल और नेशनल। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें क्या देखेंगे कि पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। एक एक करके फिर डिफाइन करेंगे क्या कि बेसिस ऑफ ओरिजिन पे रिसोर्स बायोटिक, एबायोटिक क्या है, बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी पे जो बांटा गया रिसोर्स को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पर, ये दोनों के बारे में समझेंगे एक विद एग्जांपल। फिर ऑनरशिप पे देखेंगे क्या कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है, आखिर ये इंडिविजुअल रिसोर्स कौन सा होता है, कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर में कौन कौन सा रिसोर्स आता है, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर में कौन कौन सा, ऑनरशिप के बेस पर कौन कौन सा रिसोर्स आता है। फिर क्या है कि डेवलपमेंट के बेस पे देखेंगे क्या कि पोटेंशियल डेवलप और स्टॉक्स रिजर्व्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिर क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर से टॉपिक, बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। इसका हिंदी क्या हुआ, उत्पत्ति के आधार पे कि कौन सा रिसोर्स कहाँ से क्या हो रहा है कि निकल रहा है, कहाँ से ओरिजिन है उसका। तो इसमें हम क्या बताएं कि पहला क्या देखे थे, बायोटिक होता है, बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स में क्या है कि दीज रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स। ये जो भी बायोटिक रिसोर्स है तो नाम से डिफाइन है कि ये कहाँ से ओरिजिन होगा, कहाँ से ऑब्टेंड होगा, ऑब्टेंड बाय बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर से होगा, एंड हैव लाइफ, एंड लाइफ हो, बायोस्फीयर से क्या है ऑब्टेन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं सच एज ह्यूमन बींग्स, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु, पेड़ पौधा, इसके बारे में जानेंगे। फिशरीज के बारे में, फिशरीज क्या है, और लाइव स्टॉक्स। ये सब किस रिसोर्स में आया, ये ओरिजिन के बेस पे जो डिवाइड किया गया है बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स में। तो बायोटिक के अंदर में क्या है कि बायोस्फीयर से जो रिसोर्स हम प्राप्त करते हैं और जिसमें लाइफ है, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स है, ये सब बायोटिक में आता है। आप बी में देखते क्या है, अबायोटिक रिसोर्स क्या है, इसको हम लोग इजीली कह सकते हैं कि बायोटिक रिसोर्स जो है वो लिविंग है और अबायोटिक रिसोर्स क्या है, नॉन लिविंग है, सजीव है ये, और ये क्या है, निर्जीव है अबायोटिक रिसोर्स। तो अबायोटिक रिसोर्स में क्या आता है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग्स, ऑल विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग आर कॉल्ड एबायोटिक। जो भी रिसोर्सेज नॉन लिविंग रिसोर्सेज है वो क्या कहला रहा है, अबायोटिक रिसोर्स में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं, जो भी रॉक्स है, जो भी चट्टान्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, एग्नियस रॉक्स है, ये सब के बारे में हम जानते हैं। तो रॉक्स हो गया और मेटल्स,
तो ये रॉक और मेटल क्या है, एबायोटिक रिसोर्स में है। क्यों? एग्जाम्पल है ये एबायोटिक रिसोर्स का, ये नॉन लिविंग है। और बायोटिक क्या होता है, ये लिविंग है, जैसे ह्यूमन बींग्स है, फ्लोरा फौना है, पेड़ पौधा है, सजीव जीव जंतु है, फिशरीज है, लाइव स्टॉक्स है। तो बेसिस के बेस पर क्या है, बेसिस पर ऑरिजिन ऑफ बेसिस पे क्या किए हम लोग, दो टाइप में डिवाइड किए हैं, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। आई होप कि अब इस दोनों आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम देखते क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखेंगे क्या कि एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर कितना कौन सा रिसोर्स जो है उसका कैसा एग्जॉस्टिबिलिटी है, उसके आधार पर देखेंगे। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी पे हम क्या देखते हैं, जैसा कि हम पहले भी बताएं, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे रिसोर्सेज को दो टाइप में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो फर्स्ट में हम क्या देखते हैं, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या है कि जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा। फिजिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रोड्यूस हो सकता है, दोबारा इसका क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है, रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में क्या हम लेते हैं, सोलर जो सूरज का रोशनी है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि बल्ब जलाने में सोलर प्लेट का यूज करके, तो ये सोलर एनर्जी जो है, सोलर रिसोर्स है, ये किस में आता है, रिन्यूएबल में, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, रीजनरेट हो सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है ये। सोलर के बाद क्या देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में, वाटर से भी क्या करते हैं हम लोग, वाटर एनर्जी प्राप्त करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब क्या है, डिवाइड है कंटिन्यूस फ्लो में, क्या है कि लगातार ये सब जो है बना रहेगा, रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम लोग दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे इसी में, रिन्यूएबल के बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन है। तो नाम से जैसा स्पष्ट है क्या कि नॉन रिन्यूएबल, तो वो क्या होगा कि रिन्यूएबल के जस्ट उल्टा अपोजिट होगा। तो दूसरा में इस देखेंगे क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है कि दिस ऑक्यूर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, इट ऑक्यूर बट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ऐसा नहीं है कि हम ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को दोबारा रिप्रोड्यूस ये नहीं होता है, दोबारा पेट्रोलियम भी बनेगा, लेकिन जो अभी पेट्रोलियम का जो स्टॉक है हमारे पास, जो कोयला का स्टॉक है, वो एक बार यदि ख़त्म हो जाता है तो दोबारा उसको जनरेट होने में क्या है कि हज़ारों साल लगता है, और हज़ार साल जो है वो हम ह्यूमन बींग्स के लाइफ स्पेन से क्या है, वो कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको रिन्यूएबल का कैटेगरी में इसीलिए रखा गया है कि इट्स ऑक्योर, इसको हम लोग ऑक्योर कर सकते हैं, बट टेक अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, समय क्या लेगा, ये जियोलॉजिकल टाइम बहुत ही ज़्यादा लेगा, मिलियंस ऑफ ईयर इसमें जो है ना, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा, कई लाखों लाख साल जो है ना, वर्ष क्या होगा, ये टेक करेगा। इस रिसोर्सेज में क्या है, तो फॉसिल फ्यूल, जैसे क्या है फॉसिल फ्यूल, जो देखेंगे हम लोग, फॉसिल फ्यूल में कोल आता है, पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या आता है, पेट्रोलियम में आता है। तो ये जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में है, लेकिन फॉसिल फ्यूल क्या है कि दोबारा इसको क्या है कि ऑक्यूर होने में, दोबारा क्रिएट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगता है। ठीक है, इस कारण से क्या है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, और हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इस रिसोर्स सब को कंजर्व करना चाहिए। इसी कारण से क्या है
कि डिपार्टमेंट है जो पेट्रोल के यूज को क्या करता है, रिड्यूस करने में मदद करता है, रिड्यूस करने पर करता है। ठीक है, कोल का यूज जो है धीरे धीरे देखते हैं क्या कि हम लोग आसपास अपने कोयला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, पहले जो प्रेस करने वाला था, आयरन करने वाला, वो कोयला का यूज़ करता था। अब क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से यूज करता है प्रेस करने के लिए, क्योंकि कोयला जितना आसानी से पहले मिलता था वो कोयला क्या हो रहा धीरे धीरे ये सब लिमिटेड स्टॉक में है। ये तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स और रिन्यूएबल रिसोर्स आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे। फिर अब आगे देखते हैं ऑनरशिप के बेस पे हम क्या देखेंगे कि रिसोर्स को एक और बेस पे क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व के आधार पे आखिर किसका उस पे क्या है कि अधिकार, उस रिसोर्स पे, किस रिसोर्स पे किसका अधिकार है, इस बात को हम क्या कहेंगे, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के आधार पर क्या किया गया है, रिसोर्स को बांटा गया है इंडिविजुअल रिसोर्स में, इंडिविजुअल रिसोर्स में, दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स में, और तीसरा क्या देखेंगे हम लोग कि नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल रिसोर्स का यदि बात करें तो इंडिविजुअल में क्या होता है, ये होता है व्यक्तिगत जो रिसोर्स है। ये कौन सा रिसोर्स है, ये व्यक्तिगत रिसोर्स है। यदि आपका घर है, आप अपने घर में रह रहे हैं, आपका घर है यदि वो, तो वो घर भी क्या एक रिसोर्स है। तो वो किसका है रिसोर्स है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, वो आपका अपना रिसोर्स है। तो वो किस में आएगा, इंडिविजुअल, जिस पे ऑनरशिप जो है किसी इंडिविजुअल का हो। ऑनरशिप जो है किसी भी रिसोर्स पर ऑनरशिप, ये स्केच जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर पे किसका ऑनरशिप है, क्या ये पूरा कम्युनिटी का है, पूरा जो हमारे एरिया का है, ये सभी लोगों का ये मार्कर है, सभी लोग इसी मार्कर से, मेरे मार्कर से ही लिखेंगे। इस पे जो ऑनरशिप है वो हमारा ऑनरशिप है। ठीक है, तो ऑनरशिप के बेस पर क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिविजुअल रिसोर्स ऑनरशिप के बेस पर है कि यदि किसी भी इंडिविजुअल का ऑनरशिप हो किसी भी रिसोर्स पे, तो वो क्या हो सकता है, तो वो किस में आएगा, ऑनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। इंडिविजुअल रिसोर्स में कौन कौन सा है, आपका लैंड है, पॉन्ड है जिसमें वाटर है, आपका वेल्स है, घर है आपका, फैन लगा है घर में, फैन है, हर चीज़ जिस पे आपका अपना या किसी एक व्यक्तिगत लोगों का क्या है कि राइट है, व्यक्तिगत लोगों का उस पर जो है ना ऑनरशिप है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा। और कम्युनिटी रिसोर्स हम क्या देखेंगे, क्या कम्युनिटी मीन्स क्या होता है, समुदाय, जिसमें एक से अधिक लोगों को सार्वजनिक चीज़ जिसे बोलते हैं हम लोग सार्वजनिक सेवा, वो किस में आता है, कम्युनिटी रिसोर्स में आता है। जैसे कि गांव का, आपके शहर का जो एक पार्क है, वो पार्क किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। ठीक है, तो वो पार्क किसका है, यदि कम्युनिटी रिसोर्स के लिए पार्क बनाया गया है तो वो कम्युनिटी रिसोर्स में है। गांव में देखते हैं हम क्या, तालाब होता है, कुआं होता है, तो वो कुआं ये सब किसके लिए यूज करने के लिए है, वो कम्युनिटी रिसोर्स के लिए। मंदिर, मस्जिद, ये किसी पर्सनल इंडिविजुअल रिसोर्स में ना आकर के ये किस में आता है, कम्युनिटी रिसोर्स में। इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के सारे मेंबर के द्वारा क्या है कि एक्सेसिबल किया जा सके, इसको यूज किया जा सके, वो किस रिसोर्स में आता है, कम्युनिटी रिसोर्स में आता है। पिकनिक पार्क में गए, पिकनिक स्पॉट्स है, पब्लिक पार्क्स है, प्लेग्राउंड है, अर्बन एरिया में जो भी पार्क ये सब है, रूरल एरिया में जो भी पार्क है, वो सब किस में आता है, कम्युनिटी रिसोर्स में आता है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं कि एक्सेसिबल बाय ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी। अब हम क्या देखेंगे इसमें, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में जानेंगे। इंडिविजुअल ऑनरशिप के बेस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल और इंटरनेशनल बांटते हैं। तो अब नेशनल रिसोर्स क्या और इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो नेशनल रिसोर्सेज वैसा रिसोर्सेज है जिस पर जो राइट किसका हो, किसी भी नेशन का हो। ठीक है, किसी भी नेशन का क्या हो, इस पर राइट्स हो, और वो रिसोर्स जो किसी खास नेशन से बिलोंग करता हो, उस रिसोर्स को क्या कहेंगे हम लोग, नेशनल रिसोर्स कहेंगे। उसका जो लीगल पावर है, यूज करने का जो लीगल पावर है, वो किसका होगा, उस कंट्री का होगा।
कंट्री के द्वारा क्या कर सकता है वो कर सकता है। जैसे हमारा देश भारत, यहाँ का जो नेशनल रिसोर्स होगा, जैसे क्या है कि नेशनल हाईवे जो है, अंतर्राष्ट्रीय मार्ग जो है हमारा NH-57 या नेशनल हाईवे जो है, तो वो किस में आता है? नेशनल हाईवे जो है वो क्या बोल सकते हैं हम कि वो नेशनल रिसोर्स में आता है। ठीक है, यदि सरकार को चाहिए कि इधर से रोड पास कर रहा हो और यदि यहाँ पर क्या है कि आपका घर आए, आपका ज़मीन आए, कुछ भी आए, तो यदि नक्शा पास हुआ इधर से जाने का, तो क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन है कि जो वर्क पूरा कम्युनिटी के फ़ायदा के लिए, पूरे देश के फ़ायदा के लिए हो, उसमें हमको क्या करना होगा कि इंडिविजुअल ऑनरशिप क्या होगा कि हमको छोड़ना होगा। देखे होंगे कि जो भी रोड बनता है तो यदि किसी का ज़मीन आता है तो सरकार क्या करता है, उसको मुआवजा देता है। ठीक है, जितना कीमत है, गवर्नमेंट कीमत जो भी रेट है, उस रेट के अनुसार से क्या करता है, उसको पे करता है गवर्नमेंट, और फिर क्या करता है कि उसके ज़मीन को ऑक्यूपाई करके उधर से रोड बनाएगा, रेलवे का ट्रैक बिछाएगा। तो क्या है कि इंडिविजुअल रिसोर्स जो है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल रिसोर्स का यूज कौन कर सकता है? हमारा नेशनल रिसोर्स ये काम कर सकता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि समुद्र में जो है, ठीक है, कोस्टल एरिया में, समुद्र में 19.2 किलोमीटर जो ओशियनिक एरिया है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 12 नॉटिकल्स बोल सकते हैं, 12 नॉटिकल्स बोलते हैं। तो ये जो कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल्स एरिया का जो रीजन है समुद्र में, वो किसका, कौन सा रिसोर्स में आएगा? वो नेशनल रिसोर्स में आएगा। वो उस देश का होगा जिस देश के पास जो सी है, जो समुद्र है। तो ओशियनिक रीजन क्या है कि 19.2 किलोमीटर का जो है वो नेशनल रिसोर्स में आता है, ओशियनिक एरिया। अब क्या देखेंगे हम लोग कि इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है और कौन सा चीज़ इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारा इंस्टीट्यूशन ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशन जिसको हम बोल सकते हैं, उसके द्वारा बहुत सारा ब्रांचेज है। तो अब देखेंगे क्या हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है कि दे आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसा रिसोर्सेज है जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ है इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, जैसे कुछ ओशियनिक रीजन है, ओशियनिक रिसोर्स है, जो ओशियनिक क्षेत्र है, तो उसका 200 किलोमीटर ओशियनिक रिसोर्स के ओपन ओशियन जो है वो नो इंडिविजुअल कंट्री का, किसी भी इंडिविजुअल कंट्री का जो है उस पर अधिकार नहीं है। और यदि उसको हम यूज करेंगे तो हमको क्या है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, तब उस ओशियनिक रिसोर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा रिसोर्स है जो जैसे ओशियनिक रिसोर्स है, यदि इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहेगा तो क्या होगा, हमेशा कन्फ्लिक्ट होगा डिफरेंट देश में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका जहाज़ जो है इसके एरिया में चला जाएगा पानी में, इसका जहाज़ जो है इसके एरिया में चला जाएगा ओशियन में। आया समझ में? तो क्या है कि पीसफुल रिलेशनशिप बनाए रखने में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में क्या है कि शांतिपूर्वक बनाए रखने में जो भी रिलेशन है, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है उसके द्वारा। नहीं तो क्या होगा, छोटा बात पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो क्या होगा कि शिप जा रहा है, किसी का सामान लेके किसी दूसरे के रीजन में चला जाएगा, और इससे क्या है कि हमेशा कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और वर्ल्ड वार का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इस कारण से इंटरनेशनल रिसोर्स को कुछ स्पेशल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है।